Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. I'm your host, Isha Fatma, and I welcome you all to our webinar series hosted by the Center for Law and Security. Today's topic is international law withering away? We have two esteemed guests here. First of all, we have Ambassador Noumana Hashmi, who is the former ambassador to China, the EU, including Belgium and Ireland, and is the current director of Pakistan Regional Economic Forum. And secondly, we have Advocate Saifullah Khan, who is an international trade privacy and policy lawyer and the the managing partner of SU Khan Associate Corporate and Legal Consultants. And lastly, we are also joined by the executive director for the Center of Law and Security, Mr. Aman Azhar. And the format of this webinar will be bilingual. Now we'll proceed with the discussion. The first question I would like to ask that from Ambassador Noumana. Why has multilateral diplomacy become more difficult in the current geopolitical environment? अच्छा, और Thank you very एम्बेसडर much. साहब थोड़ा बाइलिंगुअल हो जाएगा तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। नहीं, ठीक है, absolutely no जी problem. जी जी Absolutely. First of all, thank you very much for inviting me to your program for the second time. So I'm honored to be here. As far as your question is concerned, and in fact, when I saw the topic of your webinar, I thought it was quite an alarmist, topic, and it sort of forces you to think what is happening as far as the international law is concerned, and is it really withering, and if it's withering, why is it withering, and what are the geostrategic and geopolitical reasons for the law becoming or withering away international law. Having said that, at the outside, yes, it appears that it is the entire system of international law, which of course, as everybody knows, कि वो ब्रेटन वुड्स के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो एक सिस्टम बनाया गया था जिसकी सारी बुनियाद उस वक्त के जो पॉलिटिकल हालात थे और उस वक्त की जो विक्टोरियस फोर्सेस थी, उन्होंने ये कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। और उम्मीद तो यही थी कि इस इंटरनेशनल सिस्टम को बनाने के बाद, इंटरनेशनल लॉज एस्टैब्लिश करने के बाद, शायद दुनिया को दोबारा किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाना पड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको मैनेज किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके और उनको प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए आपने देखा है यूएन है, यूएन के साथ बेतहाशा और इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, चाहे वो मिलिट्री डोमेन में हो, चाहे वो सिविलियन डोमेन में हो, चाहे वो या पॉलिटिकल ट्रीटीज हैं, ट्रेड ट्रीटीज हैं, एनवायरमेंटल ट्रीटीज हैं जो बाइंडिंग है कौमों के। इस तरह ह्यूमन राइट्स की बेतहाशा ट्रीटीज हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सिस्टम का पूरा एक आर्किटेक्चर था। और उसमें the main idea behind it was that the sovereign states would be subservient to the international law, and in case of conflict, or in case not even conflict, the normal conduct of international politics, international relations, strategic dimension, military dimension would all be undertaken or conducted in the light of this international framework of treaties and agreements and institutions that are based there. Now, this served the world well for a certain number of period, but we saw कि जैसे ही सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई और एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया, तो ये टेंडेंसीज जो हैं ऑफ माइट इज राइट की वो ज्यादा प्रिवेल करनी शुरू हो गई ना। Path became more and more, strengthened, और कि जी might is right हो गया। If I am saying something, that is law. और अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो पिछले 20-25 साल में तो बहुत क्लियरली आपको ये नजर आते हैं। अच्छा, कि बड़ी पावर्स आपको लगता है जो रूल बुक है उसको फॉलो करना जो है वो कम कर दिया है स्टेट्स ने, एज फार एज द स्टेट्स आर कंसर्न्ड? एज द स्टेट्स आर कंसर्न्ड नहीं, उसमें एक क्लैरिटी बहुत जरूरी
है कि सब स्टेट्स ने नहीं किया। इसमें अच्छा। खास तौर पे जो पावरफुल वेस्टर्न ब्लॉक है, हाँ। जिसके पास अथॉरिटी है, मिलिट्री अथॉरिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी, स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी, उन्होंने ही ये वायलेट करना शुरू अच्छा, किया। तो मैं इसकी बाकी रीजंस सबने पे जरा मजीद फॉलो बात किया। करेंगे। आई थिंक यू हैव सेट अप द स्टेज वेरी, जो है ना उसको आपने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर दिया है। सैफुल्लाह साहब, आई वांट योर इनपुट ऑन इट, बिकॉज ये रूल बुक जो है वो सिर्फ स्टेट्स के साथ तो नहीं आई थी, एक इंटरनेशनल लीगल रिजीम था जिसके साथ बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस बने। स्टेट्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस लॉ के तहत होती हैं। सो एक तो ये कि आई वांट योर ओपिनियन कि क्या वाकई इंटरनेशनल लॉ की जो वैल्यू है वो कम हो गई, और फिर दूसरा, अगर ऐसा हुआ है तो उसका असर अभी नहीं तो क्या आगे जाकर फ्यूचर में ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो वहां पर रूल बुक एग्जिस्ट करती है वहां पर भी जो है वो पड़ेगा? पढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, वी ऑल नो it's a body of rules and principles that governs international relations between the states, international organizations, and they provide legal framework actually for international peace and facilitating international trade, and also to cope up with the challenges which are being recently faced by globally all across, like cybersecurity and cyber crime, etc. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है उसको हम अंडरमाइन तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हैविंग सेड दैट देर आर सर्टन वायलेशंस which we have seen in the recent past, but those violations should not be taken as the to indicate as a failure of international law or the enforcement. Failure तो नहीं है ना, recognition हाँ। है, pressure जरूर है, yes we can say we are there is an unprecedented pressure on, or we need realignment, or we need some adjustment of the enforcement mechanism of international law. कोई भी स्टेट, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, एशियन हो, वो इंटरनेशनल लॉ की जो प्रिवेलेंस है या उसका इनफील्ड रहना, उसको तो चैलेंज नहीं कर रहा। वो उसकी जो इन्फोर्समेंट के अंदर लकूनाज हैं, लोग उसको आर्गूमेंट ले लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी, लोग आर्गूमेंट ले लेते हैं जी के ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, बट एक्चुअली एवरीबडी, आई थिंक एवरी स्टेट डू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ और जो बट रूल। जनरली जो है वो ये जो इम्प्रेशन है, फिर तो ये बात दुरुस्त हुई कि तब तक फॉलो किया जाता है जब तक जो है वो रूल्स या ये जो लॉज हैं वो आपको सूट करते हैं। एब्सोल्युटली, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। और जहाँ पे आपको कोई डेविएशन चाहिए होती है तो आप कहते हैं कि ये मेरा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ये मेरा कोई और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ताकि आप उससे डेविएट तो कर लेते हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जो हम सब एग्री करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की जो इन फील्ड रहना या उसकी जो एप्लीकेशन को डिनाई कोई नहीं करता। ऑब्वियसली आप उसमें से वे आउट निकाल जरूर लेते हैं, बट इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल्स और वो रहेगा। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे मुल्क में क्या, बहुत से मुल्कों में आपके नेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट में भी तो वायलेशंस होती हैं ना। तो उसमें हम्म। आप ये तो नहीं कहते कि मैं नेशनल लॉ को बिल्कुल ही अबंडन कर दूंगा, आप उसकी ठीक। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को, फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक अच्छा। वाइज वायलेशन जो है इंटरनेशनल लॉ की हो रही है, दिख रही है, हाँ। एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, बट हम ये नहीं कह रहे कि वो लॉ प्रिवेल ही नहीं करेगा। जरूर, ये अच्छा, जरूर है कि उसके अंदर हमें अलाइनमेंट की जरूरत है। तो इन दोनों चीजों को हमें अलग अलग करके देखना होगा, एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म और लॉ एज इन इटसेल्फ, उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी एफिकेसी को। लेकिन एब्सोल्युटली। नगमाना साहब, मैं जस्ट वन क्वेश्चन, हाउ डू यू सी के ये जो आपका पिक एंड चूज करना है कि क्या लॉ इम्प्लीमेंट होना है, क्या नहीं होना, या किसको हमने एडहेयर करना है और किसको जो है वो नहीं करना, डू यू एग्री कि इससे जो है वो कोई फर्क पड़ता है, या फिर दिस इज नथिंग अनयूजुअल व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ या उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट की जहां पर बात आती? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये तो नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ खत्म हो गया, इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ हैं, एवरी डे वी कोट देम, सुबह दोपहर शाम। और यूएन का भी जिक्र जो है वो दिन में 1,000 दफा होता है अराउंड द वर्ल्ड। तो इंस्टीट्यूशंस तो खत्म नहीं हुई, और ना ही ये है कि कोई ट्रीटी सारी खत्म होगी, वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है, उनका
जो भी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो भी चल रहा है, उन्हीं के ऊपर पॉलिटिक्स भी चल रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल मैं तो, क्योंकि आई हैव लिव्ड इट in my 38 years of service with the foreign office, कि आप increasingly देख रहे हैं कि political जो will है of the powerful वो prevail कर जाती है, and instead of the states being subservient to the law and ensuring कि उसको violate ना करें, it is the states that have made this international law subservient to। उसके बहुत सारे तरीके, फॉर एग्जाम्पल देखें, there are many states in the western hemisphere led by the US जो UN के ड्यूज ही नहीं देते। बहुत सारी उसकी एफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाय लॉ उनको देने चाहिए टू मेक इट इफेक्टिव, वो नहीं देते। बहुत सारी और इस तरह की, जिस तरह अब उन्होंने पास किया हुआ है क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू मैं का, मतलब इसराइल पैलेस्टाइन वाला इशू हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है। I just let me complete my argument कि जी। देखें तो डेफिनेटली वो वीकेंड, इसीलिए इस वक्त जरूरत है कि जो साउथ बात कर रहा है, जिसको चाइना लीड कर रहा है, और जो मिडिल पावर्स बात कर रही है, कि आगे बहुत फ्लक्स में दुनिया है, अभी भी बहुत फ्लक्स में, और इस वक्त पहले से ज्यादा जरूरत है कि मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन किया जाए, और उसमें अब जो मिडिल पावर्स हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है। इसीलिए जो ये सारा डिबेट है इतने सालों से चल रही है ऑन द रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उसमें जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिसमें साउथ की भी कंट्रीज हैं और उनको लीड कर रहे हैं मिडिल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उसका सारा जो फोकस है वो यही है कि ये जो वीक होता जा रहा है इंटरनेशनल लॉ, जिससे मनमानी कर रहे हैं कुछ स्टेट्स, उसको रोका जाए। और इफ यू वांट पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सम काइंड ऑफ सैनिटी, जिस और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी बेसिस पे जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है ये बेस करे, तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन इंटरनेशनल लॉ को और उन इंस्टीट्यूशंस को करने की जरूरत है जिनके थ्रू ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। वो चाहे फिर आपकी ब्रेडन वुड की इंस्टीट्यूशंस हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, या वो एज आई सेड के ह्यूमन राइट्स के कन्फाइंस में आए, या फिर वो इन्वायरमेंट का आजकल बहुत बड़ा इशू है। अब तो देखे ना, साइबर का, आउटर स्पेस का, लॉ ऑफ द सी का अपना बहुत बड़ा एक इशू होता है, और अब ये एविएशन लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अब। तो यू नो, इट्स नॉट the international law has lost its value or it has died, but it is sort of not in a very healthy state, and therefore it needs लेकिन to be ये भी तो हो सकता है कि help. या तो इस बुक को फॉलो किया जाता, या फिर इस बुक को रिप्लेस करके कोई नई बुक जो है, कोई नया इंटरनेशनल लॉ का रेजीम जो है वो दैट माइट रिप्लेस इट। बट मोर ऑन दैट मैं जरा पूछूंगा, आई थिंक ईशा हैज अ क्वेश्चन फॉर सैफुल्लाह साहब जी। Yes, given the context of the global conflicts that have been going on in the world currently and since a while, I would want to ask, do you think is international law weakening amid these rising global conflicts, or do you think that it's going through a period of intense stress and transformation? Do you think there's going to be a new regime? जी बिल्कुल, as I mentioned earlier, I think it's going under a stress. And this is something which probably we have not seen too much in the recent past decades. This is a very critical stage, and there is a lot of pressure on the enforcement of international law. And what we have observed in the recent time is that the countries, the powerful countries, they are using their economic muscle to fulfill their political goals actually. अब वो करते क्या हैं, जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में ईरान के ऊपर भी, रशिया के ऊपर भी, और फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट कंट्रीज यू हैव सैंक्शंस, यू हैव एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। सो जो ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी है वो अब अलाइन हो चुकी है, या आप कहें कि वो बिल्कुल डायरेक्टली लिंक हो चुकी है पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मीट करने के लिए, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मीट करने के लिए।
तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है एक पूरे सिस्टम के ऊपर, वो इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस है. But at the same time, I would say things are moving towards positive as well on different sphere. For example, अगर आप बात करें डिजिटल इकोनॉमी की, डिजिटल ट्रेड की, हाँ तो वहाँ वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी. जैसे वी ऑल नो GDPR यूके में आया था 2018 में, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ. अब वो एड्रेस कर रहा है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को. आजकल डिजिटल इकोनॉमी में तो आपका डेटा ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर है ना. अदरवाइज इनिशियली UN बना, WTO बना, मुस्लिम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने, उन्होंने क्या बात की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की, आपकी पॉलिटिकल, आप जियो पोलिटिकल सिक्योरिटी की बात की. बट अब वो टेरिटरी से बात बाहर निकल गई है, अब बात डिजिटल हो चुकी है, डेटा ट्रांसफर डिजिटली हो रहा है. तो उसके अच्छा जो अब नया मैकेनिज्म बन रहे हैं वो हमने जो ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग गल्फ स्टेट्स, कि अब आपके जो डिजिटल इकोनॉमी में जो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर है, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज हैं, उनके लिए अब लोग चाह रहे हैं कि हार्मनी आए, उनके लिए कोहेरेंस आए लॉज के अंदर. तो एट वन स्टेज हमें नजर आ रहा है कि जैसे इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बहुत बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ वॉर्स. ऑन द अदर साइड इवन WTO में भी लास्ट लास्ट जो उनका पब्लिक फोरम था, इवन जो मिनिस्टीरियल मीटिंग थी, उसके अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि आप क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के ऊपर भी कोई देखें, रेगुलेशंस को बनाएं जो हार्मोनाइजेशन हो जैसे कि WTO के बाकी कवानीन की है. तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है. साइमल्टेनियसली उस पर भी काम चल रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली इट इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस ड्यू टू so much right. of geopolitical uncertainties that we are facing. ठीक है. मैं So I just नगमाने wanted साहब to वन add मोर one थिंग, sentence. मैं No, एक चीज आपसे जरा. I just जी wanted to add one sentence. जी जी सैफुल्लाह साहब की ही आर्ग्यूमेंट को फर्दर आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब AI का है, इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये और हो रही है कि AI की यूज पे, उसकी रेगुलेशन पे, उसकी रिसर्च के ऊपर देयर शुड बी इंटरनेशनल लॉ जिसको सब फॉलो करे. और उसमें अब आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आगे चाइना उसको लीड कर रहा है, इसीलिए कि उसको पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक उसमें ले जाके ना इस्तेमाल हो, बल्कि उसकी रेगुलेशन ठीक है. की जाए. एंड लेकिन दैट इज इसमें मैं यू नो द UN रिफॉर्म्स आल्सो कम इन ना राइट, उसी लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट. एक चीज जो हमारी समझ में आती है वो ये कि पॉलिटिकल मसल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आपके FATF जैसे इदारे हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, या फिर आपकी कोई नई लीगल रजीम डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है वो चीजें आनी हो. सो नो, अब पाकिस्तान जैसी जो मिडिल पावर्स हैं, आपके ख्याल में उनके पास ऐसे वक्त में जो है वो क्या ऑप्शंस जो है वो बचती हैं, जहां पर ये जो सुपर पावर्स हैं ये पिक एंड चूज कर रही हैं कि हमने क्या एनफोर्स करना है और क्या नहीं करना. शुड वी स्टिक टू द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लीगल रेजीम, या हमें भी कहीं पर जो है वो देखना होगा कि अपनी ऐसी हदें और ऐसे जुरिस्डिक्शंस या अपने ऐसे लॉज जो है वो लेकर आने होंगे जिससे जो है वो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स जो है वो इस करंट सिनेरियो के अंदर, जहां पर सुपर पावर्स जो हैं वो अपने मतलब के कवानीन सिर्फ नाफिज कर रही हैं. देखिए, इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया की, जी उसमें ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर कि आपका एक दो सुपर पावर्स के दरमियान एक कंपटीशन भी चल रहा है, कॉन्फ्रंट्रेशन भी चल रही है. और उसके साथ साथ मिडिल पावर्स भी इमर्ज कर रही हैं. ये जो सारा रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, तो यही मिडिल पावर्स का लीड किया हुआ है फॉर्मूला ऑफ द लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो इसको अभी तक आगे लेके चल रहा है और इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए जा रहा है, ताकि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं प्रेशर ऑन इंटरनेशनल लॉ दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द पावरफुल विच एवर कंट्री इट इज, तो उसको रोका जाए. और उसके साथ साथ ये तो देखें, जो बड़ी पावर्स हैं, ये सारे जिन बातों की आपने जिक्र किया, सैंक्शंस का और उन चीजों का, पहले तो सबसे ज्यादा इनको अमेरिका लीड कर रहा था, अभी भी कर रहा है, बट अब आप इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि चाइना हैज आल्सो गॉन टूवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग लॉज that the other countries can't
पुट सैंक्शंस ऑन यू और कांट डिक्टेट कि आपने कौन सी फॉरेन पॉलिसी करनी है, क्या करना है, बिकॉज दे से कि ये अब हमारा जी इंटरनल लॉ वायलेट करता है। और अब जो मिडिल पावर्स हैं उन्हें भी इसकी तरफ जाना पड़ेगा कि आपके पास कोई कैपेसिटी हो तो आप करते हैं ना। तो अनलेस आपकी पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जी जो कंडीशन है, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी इंप्रूव ठीक करेगी, अब नजर आ रहा है। खासतौर पे इस रीजन में जो 5 कंट्रीज हैं मिडिल पास जो इमर्ज हो रही है, जिसमें पाकिस्तान जी सरे फहरिस्त है, तो उनको अब ये देखना होगा कि वो भी अपने लॉज, हम बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं, ट्रीटीज होती है, उनको अपने लॉज को उनके साथ हार्मोनाइज करने के लिए लोकल लॉज भी एग्जैक्टली बनाते हैं, सब कुछ लेकिन अब हमें अपनी चीज को डिफेंड करने के लिए, अपने चीजों को ठीक प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अब वो अपने आप को ग्रेजुएट करके उस लेवल पे लाना होगा कि हम भी ऐसे रूल्स बनाएं कि हम उठ के फिर ठीक कह सकें कि जी दिस सैंक्शन या दिस restriction defies our own legal laws of the country, so we are not going to accept it. राइट। और ये हम देख रहे हैं कि इंडिया मोर और लेस इसका बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो आई भी थिंक कर रहा दैट है, इज चीन सच अ भी कर रहा वास्ट है। टॉपिक। हाँ, ये एक और वेबिनार एक इसके बहुत लिए जो है बड़ा वो चाहिए। टॉपिक है जी, बिल्कुल बट सही मैं बात ये है। एक और जिस बड़ा एक टॉपिक मैं एक जी इंटरवेंशन करूं, अगर आप देखें जी इंटरनेशनल लॉज जो हैं, मैं एग्जांपल देता हूं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की। डब्ल्यूटीओ के जो लॉ जी है उसमें एक्सेप्शंस हैं। आपने कहा ना कि हम क्या करें, मिडिल पावर्स क्या करें। मिडिल पावर्स के लिए एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर कि आप जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, कीपिंग इन योर इंटरेस्ट जस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन जो है वो सप्लाई चेन में चाइना के साथ है, वो आपको ऑलरेडी एफटीए है, वो बात की बहस है, फायदा है या नुकसान है। बट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, विच इज अलाउड इन अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक कोई उसमें बार नहीं है। इसी नहीं, तरह आपके पास रूम मिलता है, स्पेस आप मिलती है। रिजर्वेशंस कर लेते हैं और चीजों जी, से साइन कर लेते एब्सोल्युटली हैं। जी एब्सोल्युटली बाय कंप्लाइंग विद द फादर ऑफ द मदर्स ऑफ द लॉ, मेजर लॉ, आपके पास हाँ एक सब डिवीजन है दैट यू कैन क्रिएट इन योर ओन बेनिफिट। और हाँ जैसा मैडम एम्बेसडर ने कहा, मिडिल पावर्स जो हैं उनके पास अब वाकई विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ज़्यादा आर्गुमेंट आ रहा है, एक ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो रही है कि वो एक ग्लोबल सिस्टम के अंदर एक ज़्यादा मेजर और बड़ा रोल प्ले कर सकें। I think it is a very, very good time even for Pakistan to find out some बिल्कुल। good opportunities and try और to become part of the global economy एन and एन global. ब्लॉक जो ब्लॉक के तौर पर भी जो है वो किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो अ न्यू राइजिंग ट्रेंड, बट आई थिंक वी आर लेफ्ट विद ओनली 4-5 minutes. So Isha, very quickly ask the concluding question so that we can conclude this. आप Yeah, I अपने just want to ask. क्या करें। जी I just जी want go to ahead. ask Advocate Saifullah a quick question. You mentioned that cybersecurity, there are issues pertaining to cybersecurity and data privacy of geopolitical conflicts that are ongoing. So, how do you think that the international law can adapt, in your opinion, to address these issues concerning cross-border data flows, data privacy in this day and age? It is a very, very important subject. I tell you honestly, right now we have been working on data protection laws in Gulf countries, in Saudi, UAE, and many others. But Pakistan does not have a personal data protection law up till now. I don't know अच्छा why. Yeah, इस पे बहुत बहस हो रही थी पिछले कोई 6, 7, 8 सालों से। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ पाकिस्तान में प्रोमलगेट नहीं कर सके, इनैक्ट नहीं कर सके। उसका हमें लॉस है, इन्वेस्टमेंट का लॉस है। लोग पाकिस्तान में डाटा सेंटर नहीं बना रहे और नहीं बनाएंगे। इंडिया में जा रही है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इवन अब गल्फ कंट्रीज में जा रही है, क्योंकि वहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन्फोर्स हो चुका है, इम्प्लीमेंट ठीक हो चुका है। तो ये जब डिजिटल क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की, डिजिटल कॉमर्स की, तो उसमें पाकिस्तान को चाहिए थोड़ा सा एक्ट फास्ट करें। हमें ये लॉ अच्छा चाहिए, हमें ये पाकिस्तान में लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 140 मुल्कों में बाय द वे डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ चुका है, हमारे मुल्क में अभी तक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये चले इस हमें, पे आई थिंक दिस इज वेरी गुड दैट यू पॉइंटेड आउट। इस पे मे बी वी कैन हैव अनदर डिस्कशन या श्योर जो है श्योर, वो इसको थोड़ा डिटेल में जो है वो देखें। नगमाना हमारी साहब चंद जो फाइनल पब्लिकेशंस भी हैं, हमारी चंद हाँ पब्लिकेशंस भी है डाटा अच्छा प्राइवेसी पे। अच्छा आई विल शेयर विद यू। डेफिनेटली डेफिनेटली। नगमाना साहब व्हाट डज द फ्यूचर लुक्स लाइक?
ये लीगल रेजीम जो है वो कंटिन्यू करेगा, सरवाइव कर जाएगा? वेरी ब्रीफली। देखें जी, एज फार एज दी ओवरऑल सिस्टम विच इज इन फोर्स है, और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और वो हैं, ये तो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन ठीक क्या है। इसी शेप एंड फॉर्म में सरवाइव करेगा? नो, इट विल हैव टू बी रिफॉर्म्ड एंड इट विल हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड। और उसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि पिछले 15 साल से तो बहस चल रही है, और ये आपकी मिडिल पावर्स हैं जिन्होंने उसको बेसिकली होल्ड किया हुआ है कि वो जो रिफॉर्म्स हैं वो विम्सिकल या जो बड़ी पावर्स के अपने इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से ना हो, ठीक है। बल्कि दे ठीक। शुड बी सच दैट दे आर लॉन्ग टर्म, और वो सब कंट्रीज को मल्टीलैटरल राइट। सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। सो द ठीक। सिस्टम विल सर्वाइव, बट नॉट एग्जैक्टली एज वी नो इट। बट इवॉल्व, लेट्स से इवॉल्व इवॉल्व करेगा। करेगा, ठीक स्ट्रेंथन है। ठीक है। करेगा ऑल और राइट। इवॉल्व थैंक यू। थैंक यू जी ईशा। थैंक यू। Yes, so we are out of time. So we will conclude the webinar here. It was a fabulous one. Thank you so much for such a थैंक यू सो wonderful मच and नगवाना comprehensive साहबा एंड discussion. सैफुल्लाह साहब। ऑलवेज वेलकम। Thank Yes, you. Thank you. Pleasure to थैंक be यू here. सो Thank you मच, इट very वाज अ much. प्लेजर। thank you so थैंक यू। much. Lovely interacting with you, Saif Thank you. Saab. Thank you, Take madam. care. Same here. Same here. Thank you. Take care. Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.